Welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we are going to see your chapter number 8. And the name of your chapter number 8 is Safety and First Aid. Okay? In this chapter, my dear student, we are going to see about our safety and what is the concept behind first aid. Okay, so the concept overview, safety and first aid. Okay, and apart from them, my dear student, what the curriculum goals which we are going to discuss in this chapter? Learn basic safety rules at home, school and outside. Okay, so what basic safety rules which we need to follow while living at home, or school or at outside. Okay. Understand simple first aid procedure and when to use them. Then develop a sense of responsibility for personal and others' safety. Okay. So come with me and let's explore the chapter. So the first topic which we are going to see in this chapter is safety. So safety क्या होती है? Let's see. देखिए, when we work, study or play, we move or handle many things. Thus, we can get harmed due to the various types of movement. हम जब भी काम करते हैं, खेलते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो उस टाइम हम अपने हाथों का मूव करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, कभी कभी हमारी बॉडी के इस मूवमेंट से हम लोग खुद को कभी कभी हार्म पहुंचा लेते हैं, मीन्स तकलीफ दे देते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है? Following are the safety rules that should be followed by all to avoid the accident. So my dear students, now we are going to see some safety rules which we need to follow to keep ourselves free. To keep ourselves safe. Okay. So what are those safety rules? Let's see. यूज जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. आप जब भी रोड क्रॉस करते हो तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज कीजिए. जेब्रा क्रॉसिंग वैसे मैं आप सब लोग का प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, ये एक व्हाइट और ब्लैक कलर का स्ट्रिप्ड पाथ होता है रोड पे, जो कि रोड क्रॉस करने के लिए यूज किया जाता है. तो जब भी आपको रोड क्रॉस करना है, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग. ठीक है. इसके अलावा बच्चों देखिए क्या है अगला सेफ्टी रूल. डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस. ओके, सो व्हेन योर बस इज मूविंग, डोंट ट्राई टू मूव आउट और मूव in your bus. Okay, then the next, do not lean out of the moving bus. ठीक है, मूविंग बस चल रही है, don't put your head or other body parts out of the window. Okay, then do not disturb the bus driver. आप अपने बस ड्राइवर को कभी भी डिस्टर्ब मत कीजिए, इससे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं. do not jump on the desk. ठीक है, आपके क्लासेस में जो डेस्क है उस पर कभी भी कूदिए मत, कभी कभी आपका पैर स्लिप हो सकता है और आप गिर जाओगे. ठीक है. इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, always stand in a queue at the bus stop. Whenever you are standing at your bus stop waiting for bus, okay, always stand in a queue. ठीक है, एक लाइन में आप खड़े रहेंगे. ठीक है. Then avoid using blades to sharpen the pencil. आपको अपनी पेंसिल को शार्प करना है, ब्लेड का यूज मत कीजिए. इंस्टेड ऑफ ब्लेड यूज शार्पनर. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेफ्टी रूल, डू नॉट कीप टॉयज ऑन द फ्लोर. फ्लोर के ऊपर अपने मतलब जमीन के ऊपर कभी भी आप लोग अपना टॉयज वगैरह मत रखिए. ठीक है. देन कीप योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस. अपनी चीजों को उनकी जगहों पे, उनके सही जगह पे ही रखेंगे आप लोग. ठीक है. देन डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग. ठीक है, आप लोग अभी सब छोटे बच्चे हैं. ठीक है, आप लोग कभी भी अकेले स्विमिंग करने नहीं जाएंगे. ठीक है, या तो आप अपने एल्डर को लेके जाएंगे या फिर जो आपके स्विमिंग गाइड या स्विमिंग कोच होंगे उन्हीं की निगरानी में आप स्विमिंग करेंगे. ठीक है. फिर दूसरा है बच्चों, ये देखिए, डू नॉट touch electric wires. Okay, so electric wires, either you are at your home or either you are at your school, never touch any electrical wires. Okay, now the next safety rule, do not run on the stairs. सीट के ऊपर तो बिल्कुल भी आपको दौड़ना नहीं है, आराम से चलिए. ठीक है. So this is all about the safety rules which you have to follow while living at your home, as well as going to a school and as well as going outside. Okay. Now first aid. फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं. फर्स्ट एड क्या होता है. देखिए, फर्स्ट एड का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे किसी को चोट लग गई है, ठीक है, और अभी आप डॉक्टर को नहीं बुला सकते हो, मीन्स उनके आने में भी टाइम है, तो तब तक आप उसको ब्लीड करता हुआ तो छोड़ नहीं सकते, उस इंजर्ड पर्सन को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो. तो उस टाइम जो सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, आपके आसपास जो भी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, मेडिकल किट जो भी, जैसे डेटॉल है, कॉटन है, यू यूज टू क्लीन देयर वुंड्स. ओके, तो ये सारी चीजें जब डॉक्टर के आने से पहले किसी भी इंजर्ड पर्सन को जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वही फर्स्ट एड कहलाता है आपका. ठीक है. देखिए, कभी क्या होता है कि हम लोगों को, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया, अब देखिए आपके बुक में क्या लिखा हुआ है. कभी बच्चों क्या होता है, कोई इंजर्ड पर्सन है या कोई पेशेंट है, उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले,
ठीक है। उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये पहचानते हैं उसको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर किसी को बेसिक कॉमन सी चीज है, किसी का चोट लगा है, सर फट गया, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और बहुत काफी ज्यादा चोट लगी है, ठीक है, तो हॉस्पिटल तो आप उसे लेके जा रहे हो, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूअसली, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट एड दोगे। तो फर्स्ट एड के लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप उनके ब्लड को रोकोगे, ठीक है, आप कॉटन से और सैवलॉन या डेटॉल का यूज करके क्या करोगे, आप उनको क्लीन करोगे, उसके बाद बैंडेड लगाओगे, ठीक है, या फिर किसी पीस ऑफ क्लोथ से आप उसको टाई करोगे ताकि ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करोगे, वही आपका फर्स्ट एड है, ठीक है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट एड बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट तो बाद में आती है, पहले फर्स्ट एड आती है। अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो क्या होगा, हो सकता है वो इंजर्ड पर्सन सीरियसली इंजर्ड हो जाए, या मे भी कभी कभी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। देखिए फर्स्ट एड कभी कभी क्या होता है, कोई जल गया है, ठीक है, काफी सीरियस बर्न है बॉडी में, ठीक है, तो बर्न के लिए भी आप फर्स्ट एड दे सकते हो। कौन सा फर्स्ट एड दे सकते हो, आई होप आप सब लोगों को याद होगा, आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं इसको। आप पानी छिड़केंगे, पानी का मतलब ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा पानी, ताकि जो बर्निंग सेंसेशन है ना स्किन में वो कूल डाउन हो सके, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए फर्स्ट एड देने के लिए ना, ये तो कॉमन सी चीज है, ब्लीडिंग हो रही है आप उसे क्लीन कर दोगे, लेकिन फर्स्ट एड देने के लिए भी कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट एड गिवन इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरीज, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो लगे आप ब्लड को ही क्लीन करने, ब्लड निकल रहा है नहीं निकल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई हम लोग को कॉमन सी चीजें फॉलो करनी होती है फर्स्ट एड के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, अगर किसी की बॉडी में स्प्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, स्प्रेन का प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, कोई कभी हाथ मुड़ गया, किसी का पैर मुड़ गया, तो इस केस में आप कौन सा फर्स्ट एड दोगे, तो इस केस में आप क्या करोगे, देखिए, ठीक है। तो स्प्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों, कभी कभी स्प्रेन का मतलब हाथ मुड़ गया या पैर मुड़ गया, तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, कौन सा फर्स्ट एड दोगे, तो इस केस में सबसे पहले आप लोग ये करोगे कि जो स्ट्रेन्ड पार्ट है, ठीक है, मतलब जो भी मुड़ा हुआ बॉडी पार्ट है आपका, कोशिश आप ये करोगे कि पेशेंट उसको मूव ना करे जब तक कि वो ठीक ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये कर सकते हो फर्स्ट एड देने के लिए, सबसे पहले तो आप एक आइस पैक लीजिए, कोल्ड आइस पैक लीजिए, और उससे कोल्ड आइस पैक से जहां पे भी स्प्रेन आया है आप उस बॉडी एरिया को क्या करोगे, सेकोगे, ठीक है। इसके अलावा आप ऑइंटमेंट लगाओगे, ठीक है, एक दिन में आप 2 या 3 बार ऑइंटमेंट लगाओगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों वहां पे आप लोग क्या करोगे, इलास्टिक बैंडेज भी बांधोगे जहां पे स्प्रेन आया हुआ है, लेकिन इलास्टिक बैंडेज आप ऐसे नहीं बांधोगे, आप वहां पे कोई ऑइंटमेंट या स्प्रे लगाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक फर्स्ट एड है जो आप तब दोगे जब किसी के हाथ या पैर में मोच आई हो, ठीक है। मान लीजिए किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया है, मोच का मतलब क्या होता है, पेन कॉज हो रहा है, ठीक है। देखिए मोच का मतलब, स्प्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कभी कभी जॉइंट्स में ना ट्विस्ट आ जाती है या स्वेलिंग आ जाती है तो वो होता है स्प्रेन, और कभी कभी ना हड्डियां टूट भी जाती है, तो जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर, ठीक है। तो अगर किसी को फ्रैक्चर आ गया तो फ्रैक्चर में आप कैसा फर्स्ट एड दोगे, ठीक है। तो जो फ्रैक्चर आता है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस केस में आप कौन सा फर्स्ट एड दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये करोगे कि जिस भी पर्सन को फ्रैक्चर हुआ है आप उसको पहले बोलोगे मूव मत कीजिए, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट होगा तो बोन्स का मूवमेंट होगा, तो अगर मूवमेंट होगा तो दर्द होगा, तो उनसे कहिए कि वो एक जगह स्टिल रहे, बॉडी के मूवमेंट में बॉडी को बिल्कुल मूव ना करे, ठीक है। इसके अलावा आप स्प्लिंट या स्लिंग, इस तरीके से, ये देखिए स्लिंग है और ये स्प्लिंट है। स्लिंग मतलब अगर हाथ में फ्रैक्चर है तो इस टाइप से आप हाथ को सपोर्ट दोगे, और अगर पैर में फ्रैक्चर है तो इस तरीके से, ठीक है, ताकि जो ब्रोकन बोन है उसे क्या मिले, उसको पूरा का पूरा एक हेल्प मिल पाए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो फ्रैक्चर्ड आर्म है, ठीक है, जो फ्रैक्चर्ड आर्म है वो स्लिंग की हेल्प से सही होगा, और जो आपका टूटा हुआ पैर वो स्प्लिंट की हेल्प से सही होगा। पर सही कैसे होगा, क्योंकि जब आप ये दोनों टाइप स्लिंग और स्प्लिंट का सहारा देते हो ना हाथ और पैर को, तो बोन को रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, बोन को इजीली हील होने में टाइम फिर कम लगता है, ठीक है। तो चलिए ये तो था वो फर्स्ट एड जो आप दोगे किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ। अब अगर कोई जल गया हो तो कैसे आप मतलब अगर कोई जल गया तो कैसे आप फर्स्ट एड दोगे, ठीक है। तो देखिए ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग फर्स्ट एड उस केस में कैसे दोगे अगर किसी की स्किन जली हो। तो देखिए अगर कोई हल्का सा जला है, ठीक है, सिर्फ रेड हो गई है स्किन,
ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस एरिया को आप पानी से धुल दोगे, ठीक है। अगर सिर्फ हल्का सा जला है, सिर्फ रेड हुई है स्किन, सिर्फ रेड हो गई है स्किन जलने से, तो आप पानी से उसको धो दोगे। उसके बाद आप बर्नॉल लगाओगे और एक क्लीन क्लॉथ से उसको बांध दोगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर डैमेज हो गया है, ठीक है। सीवियर डैमेज मतलब ज्यादा जल गया और ब्लिस्टर्स आ गए हैं, ठीक है, स्किन में। तो आप ब्लिस्टर्स को क्या करोगे, ब्लिस्टर्स को देखिए, सबसे पहली बात बच्चों, आप कभी भी ब्लिस्टर्स को फोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, कभी, क्योंकि अगर आप फोड़ोगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले एक गीला कपड़ा लोगे, उस गीले कपड़े को बेकिंग सोडा के सोल्यूशन में डिप करोगे, और बेकिंग सोडा के सोल्यूशन का डिप किया हुआ कपड़ा वो जो ब्लिस्टर वाला एरिया है, जो जलने से आया है, वहां पे आप बांध दोगे, ठीक है, ओके। इसके अलावा बच्चों कभी कभी क्या होता है, पूरी बॉडी में आग लग जाती है कपड़े में, ठीक है। अगर किसी की पूरी बॉडी में आग लग गई है तो बच्चों फिर आप उस केस में क्या करोगे, उस केस में तो सबसे पहले आप उस इंसान के ऊपर, उस इंजर्ड इंसान के ऊपर जिसकी पूरी बॉडी में आग लगी है, उसके ऊपर आप ब्लैंकेट फेंकोगे, ठीक है। ब्लैंकेट से उसको रोल करोगे ताकि आग बुझ जाए, और उसके बाद आप विक्टिम को तुरंत लेके जाओगे डॉक्टर के पास, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, ठीक है। ये सब तो थे आग लगने की वजह से। कभी कभी हमारे हाथ केमिकल से भी जल जाते हैं। अगर हमारा हाथ केमिकल से जल गया है तो बच्चों आप वहां क्या करोगे, तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि केमिकल से जले हुए पोर्शन को आप लोग पानी से जितना हो सके धोइए। उसके बाद आप डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें एसिड होता है और एसिड धीरे धीरे हमारे क्या करता है, स्किन को गलाना शुरू करता है, ठीक है। तो बच्चों ये सारे वो हमारे फर्स्ट एड थे जो हमें यूज करने हैं बर्न होने पे, ठीक है। अब अगर किसी को हल्का कट लग गया है या फिर कोई हल्की सी चोट है, तो इस केस में आप क्या करोगे, देखिए, तो सबसे पहले अगर किसी को हल्का सा कट लगा है या हल्की सी चोट लगी है, तो सोप और पानी की हेल्प से आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले उस एरिया को क्लीन करोगे। उसके अलावा डेटॉल या सैवलॉन से आप क्या करोगे, उस एरिया को कवर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आइस भी लगा सकते हो आप, अगर डेटॉल या सैवलॉन नहीं है तो आइस लगा दीजिए आप, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्लड जो वेस्ट हो रहा है वो बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट उस पर लगाएंगे और फिर बैंडेज बांधेंगे। ये तो वो चीज है जब हल्का फुल्का कट हो। कभी कभी क्या होता है, हमारा कट बहुत ज्यादा गहरा होता है, काफी ज्यादा गहरा कट आ जाता है बॉडी पे। तो इस केस में बच्चों आप लोग क्या करेंगे, देखिए, अगर कभी भी आपको ज्यादा कट लग गई तो सबसे पहले पानी से उसको क्लीन कीजिए, और साथ ही साथ कॉटन को किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप कीजिए और वहां उसको लगाइए, ठीक है। और उसके बाद बैंडेज को टाइटली आप बांधेंगे, ठीक है, बहुत टाइटली आप बांधेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, वहां पे काफी देर तक कॉटन का थिक लेयर लेके प्रेस किए रहोगे। लाइट वॉन्ड्स में आप प्रेस नहीं करोगे, बैंडेज लगा दिया खत्म। लेकिन डीप वॉन्ड में क्या होता है, हमें काफी टाइम तक कॉटन को प्रेस रखना पड़ता है। इसलिए रखना पड़ता है बच्चों क्योंकि हमारा ब्लड ना कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमें कॉटन को लगा के रखना है, ठीक है। नाउ ट्रूथ बैंक, लेट्स सी। टेटनस इज अ डिजीज कॉज्ड व्हेन स्किन इज कट बाय डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने टेटनस का नाम सुना होगा, टेटनस का इंजेक्शन लगता है। तो वो कैसे हमारी बॉडी में कट आता है टेटनस का, अगर कोई रस्टेड आयरन से आपको कट लग गया है, किसी भी रस्टेड ऑब्जेक्ट जिसको बस जंग लगा हुआ है, ठीक है, अगर उससे आपकी बॉडी में कट आया है तो उससे हमें टेटनस होने का खतरा रहता है, इसलिए टेटनस का इंजेक्शन हमें लगाना चाहिए। एंटी टेटनस इंजेक्शन गिवन विद इन 24 आवर ऑफ द एक्सीडेंट प्रिवेंट्स द इंफेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग, ठीक है। इसीलिए 24 आवर्स के विद इन हम लोगों को एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, हमारी नाक ब्लीड करती है, तो जब हमारी नाक से ब्लीडिंग होती है तो उस केस में हम लोग कौन सा फर्स्ट एड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये रहे आपके स्टेप्स। तो सबसे पहले बच्चों ये है कि जिस पेशेंट की नाक से खून बह रहा है उसको चेयर पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा दीजिए, ठीक है। फिर उसके सर को आप क्या करोगे, उसके सर को बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से टिल्ट करोगे, ठीक है, और उसकी नाक के ऊपर आप हाथ रख के उसके नाक को इस तरीके से बंद करोगे, ठीक है। उसके बाद आप आइस पैक प्रिपेयर करोगे और आइस पैक को पेशेंट के नाक के ऊपर रखोगे। उससे क्या होता है, ब्लीडिंग कम होती है, ठीक है। फिर जब आप ये काम कर रहे हो, आपने नाक तो बंद किया, अब पेशेंट सांस कैसे लेगा, तब तक आप पेशेंट से कहोगे कि वो माउथ के थ्रू सांस ले, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हल्का सा ब्लीडिंग कम होगा आप तुरंत पेशेंट को लेके जाओगे हॉस्पिटल में, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं कि कभी कभी जो आग लग जाती है, तो जब आग लग जाती है तो उस टाइम में कौन कौन सा फर्स्ट एड दे सकते हो, ठीक है। तो आग लगने की वजह
आग लगने की कौन कौन सी वजह होती है? आप माचिस से खेल रहे हो, ठीक है, कैंडल से लग सकता है, केरोसिन ऑयल से लग सकता है, या फिर कभी कभी फायर क्रैकर्स की वजह से भी आग लग जाता है, ठीक है। कई बार हमारे किचन में गैस लीक होता है, इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट है, तो इनकी वजह से हमारे घर में आग लग जाता है, ठीक है। तो जब हमारे घरों में आग लगता है बच्चों, तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं? तो देखिए, सब इसीलिए बच्चों बहुत जरूरी है ये सेफ्टी रूल कि आप लोग हमेशा भी, मीन्स आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टाइम टू टाइम चेक होने चाहिए, ठीक है, ताकि ये पता चलता है कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। फिर दूसरा है, हमेशा पेट्रोल या कैरोसिन ऑयल को एक एयर टाइट कंटेनर में रखिए जहां से कोई लीकेज ना हो, क्योंकि पेट्रोल और कैरोसिन क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, सिंथेटिक कपड़े आप लोग मत पहनिए। जब भी किचन में आप काम कर रहे हो तो सिंथेटिक कपड़े मत पहनिए, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा खाना बन चुका है या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अपना गैस सिलेंडर कभी भी बंद करना मत भूलिए, ठीक है। इसके अलावा कभी भी माचिस से खेलिए मत, ठीक है। अगर आप माचिस से कोई काम कर रहे हैं तो बहुत आराम से काम कीजिए। कैंडल्स और फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल भी बहुत आराम से कीजिए, ठीक है। अब आग तो लग चुकी है, तो अब आग पे काबू कैसे पाओगे, ठीक है। तो देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है आग पे काबू पाने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर में बच्चों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो फोम के फॉर्म में निकलता है और ये आग पे काबू पाता है, ठीक है। ये तो था फायर एक्सटिंग्विशर का। हमारे पास अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो हम आग पे कैसे काबू पाएंगे? तो आप जहां पे भी आग लगी है वहां पे बालू या फिर मड फेंकिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों, हमेशा अगर इलेक्ट्रिकल फायर लग गया है, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी से फायर आपके घर में लगा है, तो सबसे पहले तो घर के मेन स्विच को तुरंत बंद कर दीजिए, ठीक है। और जहां पे भी आग लगा है वहां पे सैंड फेंकिए, ठीक है। पानी कभी भी आप नहीं फेंकेंगे इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको, ठीक है। और कभी कभी बच्चों, ये तो सारी छोटी आग लगती है तब, पर मान लीजिए कभी बहुत बड़ी आग लग गई है तो तुरंत आप फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे 101 पे कॉल करके, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रेन ब्लिट्स ये आप पूरा करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में देंगे। पॉइजनिंग, कभी कभी बच्चों क्या होता है, पॉइजन की वजह से भी मतलब कभी कभी ना पॉइजन की वजह से भी हमारी जान को खतरा होता है, ठीक है। तो इसमें आप कौन कौन सा फर्स्ट एड यूज कर सकते हो? तो बच्चों देखिए, अगर कभी किसी ने पॉइजन गलती से खा लिया है तो सबसे पहले जो भी पेशेंट है उसको आप वॉमिट करवाने की कोशिश कीजिए। वॉमिट से जो भी अंदर है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जब वो वॉमिट कर देगा तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाइए, ठीक है। और कभी कभी हम लोग को जानवर भी काट लेते हैं, तो जब हम ह्यूमंस को जानवर काटते हैं तब हम लोग कौन सा फर्स्ट एड कर सकते हैं, देख लीजिए आप। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए आप लोग, जो एनिमल बाइट होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि जो एनिमल का सलाइवा होता है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा वायरस होते हैं। वो वायरस हमारी बॉडी के लिए बहुत बुरा होता है, ठीक है। जैसे डॉग, कैट, मंकी, वुल्फ या जिकाल, जब ये लोग हमारी बॉडी को बाइट करते हैं ना, तो इनके सलाइवा में प्रेजेंट वो वायरस हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, ठीक है। और वो वायरस हमारी बॉडी में इंफेक्शन फैलाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे अगर आपको एनिमल बाइट हो जाए? तो सबसे पहले आप लोग ये करोगे बच्चों, आप अपने घाव को साबुन से और पानी से धोगे ताकि उस पे जमा हुआ जर्म्स हट जाए, ठीक है। धोने के बाद बच्चों उसके बाद आप लोग एंटीसेप्टिक लगाओगे, ठीक है। एंटीसेप्टिक आप जहां पे भी आपको एनिमल ने बाइट किया है उस एरिया में एंटीसेप्टिक लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने घाव को कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग विक्टिम को क्या करोगे, डॉक्टर के पास लेके जाओगे और एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाओगे, ठीक है। एनिमल बाइट में बच्चों ये बहुत जरूरी है कि एंटी रेबीज का इंजेक्शन आप लोग लगवाइए, ठीक है। और कभी कभी बच्चों क्या होता है, स्नेक बाइट भी होता है। स्नेक बाइट बहुत कॉमन है, ठीक है। स्नेक बाइट अगर हुआ है तो उस केस में आप कौन सा फर्स्ट एड दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइजन को आप लोग रोकने का कोशिश कीजिए, कि वो पॉइजन सीधे आपके हार्ट में जाता है, ठीक है। हार्ट और ब्रेन में जाता है, जो कि क्या होता है, आपके हार्ट को ब्लॉक कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, विक्टिम को आप बिल्कुल स्टिल रखोगे, कोई भी बॉडी में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में मूवमेंट होगा तो जो पॉइजन है वो तुरंत आपकी बॉडी में फैलेगा, ठीक है। अगर आप बॉडी स्टिल रखोगे तो आपका पॉइजन स्लो रेट में फैलेगा, ठीक है। उसके बाद तुरंत आप विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे वो फर्स्ट एड थे जो हम लोगों ने कई सारे डेंजरस सिचुएशंस के लिए देखे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप इट अप ऑफ दिस चैप्टर।
सो एक्सीडेंट्स में हैपन ड्यू टू केयरलेसनेस। एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं? लापरवाही से होते हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चों हम लोगों को हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम किसी भी टाइप के एक्सीडेंट से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। फर्स्ट एड बच्चों बहुत जरूरी है। फर्स्ट एड की जानकारी आपको होनी चाहिए। फर्स्ट एड वो किट होता है, मींस वो तरीका है जो पेशेंट को हॉस्पिटल जाने से पहले आप दे सकते हो, ठीक है। और अगर इंजरी कई टाइप की है तो फर्स्ट एड का तरीका भी कई तरीके का होता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ जस्ट गो thoroughly through this chapter and complete the exercise, okay? Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then you all have to take very good care of yourself. Bye.